Hello, my name is Pradeep Goyal. Thanks to Dr. Sarpan. Today I have started my work with aligners. I'm pretty sure aligners would help me out to keep my teeth aligned and help me for straightening my teeth. Thank you. So, Pradeep, how was your experience with this? As of now, it is awesome because honestly, I have been to many doctors. They never recommended me aligners. Everyone was recommending me the surgery. So I was scared of surgery. I was looking for aligners. Thank you for recommending me aligners. So, I wish you all the best for your Thank future you. and all the best for your treatment. Thank you, sir. I hope you get your teeth straightened. For sure, I will. Thank you. Do Thank come you. to me. Thank you. Okay. जी, आपका क्या नाम है? रंगजोत सिंह। रंजीत सिंह। हाँ जी सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं दुगल टू था, शहीद भगत सिंह नगर रहना मैं। ओके जी जी। आप कहाँ रहते हो आप? ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया था? ਮੈਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਲਗਵਾਈ ਆਪਣੀ। ठीक है, कब करवाई थी? ਇੰਪਲਾਂਟ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है, हाँ, आपको पेन तो नहीं हुआ ਨਾ ट्रीटमेंट? ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा शेयर कर लो। ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू। Okay. ओके। पूरी फैमिली इवन कि मेरे सिस्टर कोलकाता तो आके इत्थे ट्रीटमेंट करवा के लेके गए ने अपना टेस्ट ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਟੇਸਟ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਸੀਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ आरसीटी ना करो, फीलिंग करके ही अगर मेडिसिन दे दो या अच्छा ट्रीटमेंट कर दो भी मैं आरसीटी नहीं करवा सकती। तो सर ने उदा ही किया, सही हो जाता टीथ। हाँ जी ਓਕੇ ਇਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਾਏ? ਜੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ, ਓਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾ I am 1000% satisfied with his treatment, with his everything, with his device and all. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹਰੈਸ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ठीक है। ਮੈਂਟਲ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਵੀ, what to do, what not to do, what happened with my teeth and all. Okay. But now I am fully happy that I am going on well. My position is developing day by day, and I hope I am fully satisfied. I'll be okay here. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਚਰ ਹੈ? ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਡਾਕਟਰ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Hi, my name is Sam Collier. I'm from California, USA. And I have to let you know, let everybody know that the Bhardwaj Dental Services is one of the best services. I used a couple of times over there for some implants and for my clinics and other works. And I travel over there in India a lot, and every time I go there, take the Bhardwaj Dental Service. They have a highly latest equipment and very good cooperative staff, and easily appointments available, and they take care very good for me. It's not important that the expensive dentist can do a better job. The perfect dentist can do a better job like Bhardwaj Dental. And I wish you best of luck. Thank you very much. Hello friends, I am Dr. Sapan Bhardwaj. Today I will tell you about benefits of sterilization in dentistry. Sterilization एक बहुत ही ज़्यादा important criteria है जो कि हर dental treatment में follow किया जाना चाहिए। Sterilization के लिए हम different techniques follow करते हैं। The foremost technique in sterilization is proper cleaning of instruments. After that we use a ultrasonic cleaner and after that we autoclave the instruments. Autoclaving एक बहुत ही important step है जिससे कि सारे viruses और spores जो instruments के ऊपर लगे होते हैं वो सारे dead किए जाते हैं। इसके पेशेंट्स को क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होती और कोई भी वायरल जैसे हेपेटाइटिस या HIV का पेशेंट हमारे क्लिनिक्स में आता है तो उससे क्रॉस कंटेमिनेशन दूसरे पेशेंट में नहीं होती है। तो स्टरलाइजेशन आप नेक्स्ट टाइम किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो जरूर देखिए कि उस क्लिनिक में प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। स्माइल डिजाइनिंग बेसिकली आपकी स्माइल को इम्प्रूव करने का एक तरीका है जिसमें कि हम अलग अलग तरीकों से आपकी स्माइल इम्प्रूव करते हैं। उसमें आते हैं लेमिनेट्स, विनियर्स या फिर टूथ कलर्ड लेजर फिलिंग्स। ये सारे तरीकों से आप अपने दांतों की स्माइल और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। लेमिनेट्स या विनियर्स से आपके ऊपर दांतों के ऊपर
कैपिंग की तरह का एक परत चढ़ जाती है, जिससे कि आपके दांत बिल्कुल सीधे और जिस भी रंग के आप चाहते हैं वो हो सकते हैं। टूथ कलर्ड फिलिंग्स भी उसी तरीके से की जाती है, बट वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती है। तो लेमिनेट्स और विनियर्स थोड़े उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टे करते हैं। तो ये थोड़े तरीके हैं जिनसे हम अपनी स्माइल ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। क्या आपके पीले दांतों की वजह से हर कोई आपको टोकता है और आप सारे देसी नुस्खे अपना कर भी हार गए हो? तो हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिससे कि आपके पीले दांत फिर से सफ़ेद हो सकते हैं। तो दोस्तों, पीले दांतों को सफ़ेद करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, उसे हम ब्लीचिंग बोलते हैं। ब्लीचिंग से आपके दांत बिल्कुल 3, 4, 5 शेड्स ऊपर हो सकते हैं और वाइट हो सकते हैं। उसके अलावा पीले दांतों को और सही करने के लिए इसके अलावा और जो तरीके रहते हैं वो विनियर्स रहते हैं या कैपिंग्स रहती है, बट ब्लीचिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो जिसके भी दांत पीले हो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के पास जाके ब्लीचिंग के लिए ज़रूर इंक्वायर करें। थैंक यू। दांतों के बीच गैप एक बहुत ही आम समस्या है जो कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में पाई जाती है, और उसको ठीक करने के लिए हमारे पास 3-4 बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्रेसेस या फिर अलाइनर्स। ब्रेसेस के द्वारा हम दांतों के बीच का गैप बंद कर सकते हैं, और जो लोग ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते तो उनके लिए एक अलाइनर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, जिन्हें कि हम इनविजिबल ब्रेसेस भी कहते हैं। उसके द्वारा भी दांतों का गैप बंद किया जा सकता है। इसके अलावा दांतों के बीच का गैप बंद करने के लिए विनियर्स या कैपिंग्स ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो जिन लोगों के दांतों के बीच भी गैप है और उन्हें ठीक करवाना चाहते हैं वो हमारे क्लिनिक में आके हमसे मिलिए। थैंक यू। क्या आपका कोई दांत मिसिंग है या फिर कोई दांत आपने बहुत पहले निकलवा दिया हो और अब आपको लग रहा है कि उसका आपको रिप्लेस करवाना चाहिए? तो हमारे पास मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए 2-3 बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है उसे हम इम्प्लांट्स बोलते हैं। इम्प्लांट्स हड्डी के अंदर प्लेस किए जाते हैं और उसके ऊपर हम दांत लगा लेते हैं मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए। उसके अलावा अन्य जो ऑप्शंस है वो होते हैं ब्रिजेस या फिर रिमूवेबल टीथ। तो आप कोई भी अगर ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे आके मिलिए, वी विल गाइड यू बेस्ट। थैंक यू। विच आर प्रेवलेंट अमंग पीपल, वन इज़ दैट कि ऊपर के दांत निकलवाने से रोशनी कम हो जाती है या दांतों की सफाई करवाने से दांत ढीले हो जाते हैं। तो दीज आर जस्ट मिथ्स, डोंट गो बाय देम एंड गो फॉर प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग। और जब भी आपने डेंटिस्ट से दांत निकलवाना है तो उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि दांतों की रोशनी चली जाएगी। गेट इट डन बाय अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट, सो डोंट बिलीव इन दिस मिथ्स। Children should be taught to brush twice daily, and initially you should brush their teeth yourself so that they know how to brush their teeth. Gradually जब जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको इंडिपेंडेंटली आप पहले वॉच करो कि कैसे वो ब्रशिंग कर रहे हैं। Initially tell them to brush in a circular motion and stand by their side till they are 3 years old. धीरे धीरे जब उन्हें आदत पड़ जाएगी फिर इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं, and make sure they brush twice a day. That is very important. Like to emphasize on the importance of visiting your dentist regularly. No matter if you have a problem or not, do make it a point to visit your dentist after every 6 months. And अपने बच्चों को भी रेगुलरली चेक करवाइए 6 महीने के बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है, हम नहीं नोटिस कर पाते। बट डेंटिस्ट जो होगा, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके दांतों के प्रॉपर एक्सरेज लेंगे, तो फिर दे कैन मेक आउट कि आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, एंड वो इनिशियली उसको मतलब सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्योंकि बाद में जैसे प्रॉब्लम एक बार आ जाती है फिर उसके बाद फिर वो पेनफुल हो जाता है उसको ट्रीट करना। सो डू मेक इट अ पॉइंट टू विजिट योर डेंटिस्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा अलाइनर्स वर्सेस ट्रेडिशनल ब्रेसेस। सो आपको पहले पता ही होगा कि पहले के टाइम में बच्चे जिनके दांत टेढ़े मेढ़े या आगे को होते थे वो ब्रेसेस अपने दांतों में लगवाते थे। आज के टाइम में भी वो चीज़ चलती है, बट हमारे पास एक और ऑप्शन है पेशेंट्स के लिए, दैट इज कॉल्ड अलाइनर्स। सो अलाइनर्स क्या चीज़ है? अलाइनर्स आर जस्ट इनविजिबल ब्रेसेस। सो जो पेशेंट्स डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास रेगुलरली नहीं आ सकते अपनी वायर्स टाइट करवाने, उनको अलाइन करवाने, तो उनके लिए हमारे पास अलाइनर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अलाइनर्स में क्या रहता है, वो आपको कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 14 to 15 डेज के बाद न्यू सेट लगाना पड़ता है। वो आप घर में ही लगा सकते हैं और उसका इक्वली बिल्कुल सेम रिजल्ट रहता है जो हमारा ट्रेडिशनल ब्रेसेस के साथ रहता है। सो जो लोग हमारे पास रेगुलरली
ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ सकते या फिर जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उनके लिए अलाइनर्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन।